So, good evening friends, we are here again back. We did discuss ANOVA. Now we are going for correlation, regression and other things. Before we move on, let's talk about something as we are discussing more and more test here, and this is, please remember this diagram. So, we have independent variable x causing y. Now, please understand this, when to use which test, because if you remember the test where t-test we were discussing and I gave you the last page of Andy Field, there are multiple tests, but we need to understand conceptually. Every time we cannot go to the software and ask that what did we did this, we need this, we need that. Okay. So, if our y is either a scalar or is categorical. Scalar like, let us say, marks, categorical like GPA. Now, I will not go on this thing that when which GPA getting which marks and those sort of things. In some universities GPA is independent of marks, in some university marks and GPA. I am assuming they are different. Okay. And on x axis again you can have a scalar and a categorical. This is IV and this is dV. So, if you remember when we were doing ANOVA, our dependent variable was a scalar variable, okay, and scalar variable मतलब उसकी वैल्यूज़ हमारी कंटिन्यूस रहती थी. अगर चार टाइप डेटा होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो. सो इंटरवल या रेशियो डेटा अगर है y का मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल का, और अगर हमारा जो वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैटेगोरिकल है, जैसे डोजेस थी हमारी लो हाई और ट्रीटमेंट ABC, ओके, और अगर पहले जाएं तो नर्चरिंग, फार्मिंग, दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स, देन वी डू ANOVA, T or Z test. As we know, T test is for less than 30 and Z test for more for 30, but ANOVA is for more than 2 groups. Okay. अब आगे, what if that both are scalar? Then here we do linear regression, linear or non-linear regression, or we do correlation. Okay, or this is our second case. Third case, that both are categorical. At that stage we apply chi-square or non-parametric tests. Yeah. And the last is, this is very interesting, categorical like GPA or could be like lone default. डिफॉल्ट करेगा नहीं करेगा, दो ही चीज़ें हैं, ठीक है. दैट इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल, डिफॉल्ट करेगा नहीं करेगा, y इज 0 और 1, दैट इज कॉल्ड लॉजिस्टिक रिग्रेशन. सो नाउ वी हैव डिस्कस वन टेक्निक. नाउ वी विल बी मूविंग टूवर्ड्स दिस. देखिए, लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज नॉट जनरली यूज्ड, बट
as in graduation sciences, we will graduation or other sciences graduate level, we will start using it. So t-test, z-test, ANOVA one category, regression, nonlinear correlation other category. Then comes chi-square भी use होते हैं, कम होते हैं, we will talk about that also. And we have logistic regression. Now please pay heed, now we begin correlation, and here I will be writing more as compared to saying things. Okay. If you remember, first time we squared variables xi minus x by square summation. This fold caused variance. What if we do this? Square is not there. This is called covariance. Or COV XY. So I say variance is covariance of variable itself. So if we do covariance XX, it becomes variance X. Okay. So now this, why we are discussing this? Till now we were interested understanding the univariate analysis, where we did univariate, if you remember, where we had all the MOC, the measure of centrality, measure of dispersion or variability. Okay. We also had hypothesis, one sample t-test. Okay. The moment we had some other variable, we went to bivariate, and in bivariate we have already discussed t. T-test is one sample, is univariate. T-test paired or independent, and ANOVA. Okay. Or T and Z test can also be, we can also write Z test here, not a problem, that is not a point. Okay. So this was we have discussed. Now we are getting to something more interesting कि दोनों वेरिएबल कंटिन्यूअस हैं. ये y है, ये x है. यूनिवेरिएट बाईवेरिएट में कैटेगोरिकल में वी हैव टू वैल्यूज ऑफ x, ये. अब क्या है, यहाँ पे पूरा कंटिन्यूअस है, एवरीथिंग इज देयर. सो नाउ वी कैन प्लॉट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y एंड ऑल वैल्यूज ऑफ x, एंड देयरफॉर वी आर ट्राइंग टू से if x increases, does y increase or decrease or not affected? That's one. And secondly, how much? If it is positive increase, how much positive increase? It is a decrease, how much positive decrease? Okay. तीन चीज़ें होंगी, x बढ़ेगा या तो y बढ़ेगा या तो y कम होगा या फिर कुछ नहीं होगा. अच्छा, अब बढ़ेगा तो बढ़ने के बाद कितना बढ़ेगा. ओके. सो यहाँ पर हमारा बेसिक कंसेप्ट शुरू हो जाता है स्टैटिस्टिक्स का. दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. टिल नाउ इट वाज वेरी सिंपल बिकॉज टू कैटेगरीज. अब यहाँ पे
मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बढ़ जाएंगी, सब बढ़ जाएगा. एंड यू मस्ट हैव हर्ड रिग्रेशन एवरीवेयर. Okay, we took a stock prices, we took the income of the people, and then we did a regression analysis, stock prices versus income of the people. This is we have to understand covariance. As you remember, the dimension of variance is x square. So, if I am talking of weights, kgs, then the dimension of variance will be kg square. Similarly, there is a dimension of variance of covariance. Okay, covariance. So, suppose x is in kgs and y is in meters. Like height and weight. Longer the guy, heavier he is. जो छोटा बच्चा है उसकी हाइट कम है, उसका वेट भी कम है, और बड़ा हुआ. सो वी अज्यूम दैट हाइट बढ़ेगा तो वेट बढ़ेगा. हाइट बढ़ेगा तो हाइट इज कॉजिंग इंक्रीज इन वेट. ओके, सो डायमेंशन ऑफ दिस विल बी केजी वेट, केजी मीटर्स. एंड इफ यू रिमेंबर इन द जेड स्कोर क्लास आई वाज टॉकिंग, it is very important for us when we are comparing two sort of different datas. Compare the dimensionless variables. Okay, dimensionless variables, only degree will come. So correlation is a measure, is like covariance without the dimension. Correlation is covariance without the dimension. क्या मतलब है इसका? देखिए, let's try to do this here. Okay. Let's say we had a variable called height. Okay, अभी हम मीटर्स में बात करते हैं. देखिए, आई एम डिफाइनिंग अ वेरिएबल हाइट. 5 लोगों की हाइट लेते हैं. 1.54 मीटर, 1.5 मीटर, 1.8 मीटर, 1.9 मीटर और 1.6 भी ले लेते हैं. चलिए, ठीक है, ये हो गई हाइट. अब हम लेंगे वेट. पहले का वेट मान लीजिए 40 किलो है, दूसरे का भी 45 किलो है, तीसरे का मान लीजिए 70 है, फिर 70 है, फिर इस तरह करके 80 है मान लीजिए लेट्स अज्यूम. ओके, तो पहले तो हम डायमेंशन चेक करेंगे हाइट और वेट की सेम है कि नहीं है. ओके, सॉरी, क्लास चेक करेंगे, क्लास हाइट की न्यूमेरिक. ओके, सो वी हैव 5 values of height and 5 values of this. Now I think, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे फंक्शन क्या आ रहा है, स्टैट्स कोवेरियंस एक्स वाई इक्वल टू नन. ओके, अभी हम इसमें कमांड में जाएंगे. आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू व्हाट इज कोवेरियंस. ओके, हाइट कॉमा वेट. देखिए, कोवेरियंस इज 2.57 व्हाट मीटर kg. But when we talk of correlation, it will not be that. I think I have written the right command. Let me check the command name, please. Correlation.test. Okay. देखिए 0.71. So
covariance can be from positive infinity to negative infinity, but correlation will always be between -1 to +1. This is a difference between covariance and correlation. Please see this slide properly. If x and y are standardized, meaning they have zero means and standard deviations are 1, then covariance is calculated like this. Okay, when both the, please see the pointer, when both the variables standardized, covariance becomes their correlation. Okay, however, if x and y are not standardized, traditional covariance which we have discussed. Okay, so अगर तो कोरिलेशन और कोवेरियंस का झंझट खत्म करना है, क्या कोवेरियंस है क्या कोरिलेशन है छोड़िए, दोनों का स्टैंडर्ड निकाल दीजिए, स्टैंडर्ड डेटा ZXi ZXy, तब उसका कोरिलेशन और उसका कोवेरियंस सेम होगा. देयरफॉर आई टोल्ड यू स्टैंडर्डाइजेशन डेटा करने का बहुत फायदा होता है. ओके, बट इट्स अ एक्स्ट्रा स्टेप. ठीक है, सो कोवेरियंस और कोरिलेशन में ज़्यादा फर्क नहीं है. It measures they serve the same purpose but differently. Okay, now please see, this is the formula of covariance. ठीक है, covi xy. Now suppose you don't have standardized data, then how do you get correlation? So the correlation is covariance divided by sigma x or sigma y. And for standardized data, sigma x is equal to sigma y is equal to 1, hence then correlation covariance are same. But otherwise, R is equal to covariance xy divided by sigma x sigma y. अब आपने, I don't know, if you see the right hand side, you might have seen this formula also at multiple places in books, especially 10th class. लेकिन ध्यान से देखिए है क्या, xi minus x bar y minus y bar, this is a covariance term. और नीचे देखिए एक्स आई माइनस एक्स बार, दिस इज द वेरिएंस टर्म, एंड अल्टीमेटली रूट हो रहा है तो स्टैंडर्ड डिविएशन, और y माइनस वाई आई. अब यहाँ पर n सब बराबर हैं x और y के, तो सब कट जाता है इसमें. ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस. दिस इज द फाउंडेशन थिंग दैट वी टॉक ऑफ कोरिलेशन, बट मेनी अ टाइम्स यू विल टॉक, पीपल टॉक ऑफ कोवेरियंस ऑल्सो. स्टैंडर्डाइज डेटा के लिए कोरिलेशन कोवेरियंस बराबर है. अगर स्टैंडर्डाइज डेटा नहीं है तो कोवेरियंस निकालिए इस फॉर्मूले से जो नीचे लिखा हुआ है, उसके बाद कोवेरियंस से निकालिए कोरिलेशन इस फॉर्मूले से, नहीं तो डायरेक्टली जो राइट साइड में चीज लिखी है उससे कोरिलेशन निकालिए. ठीक है, तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस. नाउ अभी देखिए, जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी तो थोड़ा कन्फ्यूजन आपके साथ बढ़े. जैसे कि पहले हम कहते थे पृथ्वी हिलती नहीं है, सूर्य हिलता है, और सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है. बचपन में बताते थे सूर्य उगा सूर्य जुगा, सूर्य उगता नहीं है, अर्थ घूमती है. कुछ दिनों बाद हमने पढ़ा कि भैया अर्थ घूमती है, सूर्य नहीं घूमता है. फिर कुछ दिनों बाद पढ़ा कि सभी घूम रहे हैं. तो उसी तरह अभी हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन. जी हाँ, कोरिलेशन जो हमने डिस्कस किया वो था पियर्सन कोरिलेशन. पियर्सन कोरिलेशन इज द मोस्ट टॉक्ड कोरिलेशन. इट इज टॉक्ड व्हेन बोथ y and x are continuous or scalar. ठीक है, हाउएवर व्हाट इफ वेयर अदर एंड, बिकॉज कोवेरियंस से हो क्या रहा है ध्यान से देखिए, तो एक ट्रेंड पता करने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, सो अगर हमारा नीचे का डेटा वो हो, ऑर्डिनल हो y और x भी, तो देन वी गो फॉर स्पीयरमैन और केंडल. ठीक है, और अगर दोनों नॉमिनल हो तो फाई, और अगर नॉमिनल के साथ डाइकोटोमस हो बाई सीरियल. देखिए
till now primarily focus on Pearson coefficient is there. We will show you all calculations, that's not an issue. But जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले मैंने ये बोला कि भाई सिंपल दोनों कंटिन्यूस में तो कोरिलेशन करेंगे, लेकिन आप देखें तो हमने अब सारी बात कर रहे हैं. इनफैक्ट काई स्क्वायर में अभी आप आएंगे, जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आएंगे, उसमें फाई और बाई सीरियल दोनों कैलकुलेट होंगे. So correlation coefficient when somebody asks you is actually Pearson correlation coefficient. Please understand this. जैसे हम बोलते हैं योगा, योगा का मतलब एक्सरसाइज नहीं, योगा का मतलब असल में यम नियम ध्यान प्रत्याहार और आपका ऐसे 8 स्टेप्स हैं. ध्यान समाधि प्रत्याहार ऐसे करके एंड तक समझ लग जाता है. 8 स्टेप्स हैं. आसन उसमें एक चीज़ है. यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान समाधि. ओके, तो इस तरह करके योगा स्टेप्स हैं, बट योगा को हमने एक्सरसाइज मान लिया है. तो उसी तरह कोरिलेशन कोफिशिएंट बहुत तरीके के हैं, लेकिन हम लोग कोरिलेशन कोफिशिएंट मान लें पियर्सन कोफिशिएंट, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट. दैट इज व्हाट वी डिस्कस टिल नाउ. नाउ वी आर सेइंग कि भैया कोफिशिएंट अलग अलग होते हैं. ठीक है, इफ यू डोंट रिमेंबर एनीथिंग, सिंपल कार्ल पियर्सन. योगा मतलब एक्सरसाइज, योगा करो. योगा का मतलब यम नियम होता है, लेकिन अगर आप प्राणायाम कर रहे हैं तो योगा करना है. उसी तरह अगर आप कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट निकाल रहे हैं तो आप कोरिलेशन निकाल रहे हैं. ओके, नाउ वी विल गो इन दीज टेस्ट. सो प्लीज अंडरस्टैंड. लेट अस गो हेयर. लेट अस इंपोर्ट आवर बिगर डेटा. अभी छोटा छोटा डेटा था, बिगर डेटा लेते हैं. यहाँ पर जाते हैं, माई CSV डेटा, माई CSV डेटा निकल लेते हैं, माई डेटा कर लेते हैं, माई अंडरस्कोर डेटा. नाम यहाँ चेंज कर लिया. यहाँ पर हम लोग आए और स्कूल को हमने इंपोर्ट कर लिया. देखिए, ठीक है जी. नाउ ये हमारा माई डेटा है, हमको पता है. अब यहाँ पर हम ध्यान से देखिए, वी विल गो टू टीचिंग रिग्रेशन कोरिलेशन. प्लीज सी, ये टीचिंग टैब आपको याद होगा, हमने एक rk.teaching यूज़ किया था, उससे आया है. लेकिन कोरिलेशन बहुत तरीके से यहाँ पर भी आता है. एनालिसिस टैब करके कोरिलेशन यहाँ से भी आता है. ओके, सो लेट्स चेक इट हेयर. दोनों सेम सेम काम करते हैं मोटा मोटा. दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ आर कि वॉट एवर आप चाहें तो अपना ही प्लग इन बना लीजिए. आपको जो जो फंक्शन चाहिए आप अपना खुद का बना सकते हैं. ये इज़ नॉट बिग थिंग. ठीक है, लेट्स कम बैक. सो हमारा माई अंडरस्कोर डॉट डेटा, तो नाम ऐसा हो गया, कोई बात नहीं. ठीक है, तो देखिए CSV1, CSV2, CSV3, इसमें कितना भी कर सकते हैं आप. ओके, अब ध्यान से देखिए. कोरिलेशन ऑप्शंस हमने डिस्कस किया. हमने कहा बाय डिफॉल्ट वी विल यूज गो फॉर द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट. ओके, वी आर नॉट गोइंग फॉर Kendall और Spearman right now because we are getting scalar data. Okay, there is nothing called groups. हम ग्रुप से नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे आप कोड देख सकते हैं. देखिए, कोरिलेशन मैट्रिक्स माई डॉट डेटा CSV1 पेयर वाइज. ठीक है, ये कोड इसलिए जरूरी होता है बिकॉज समटाइम्स इफ द कोड स्टक्स, लाइक हमारा पहले हुआ था. ठीक है, सॉफ्टवेयर स्टक कर जाता है, कभी कभी सेटअप स्टक कर जाता है. सो वी शुड नो. ऐसा ही नहीं है कि एवरीथिंग इज फ्लॉलेस. आर की खासियत ये है कि अगर आपको नहीं, एक चीज़ नहीं चलती दूसरी चलती है. जैसे आपने देखा होगा जब यहाँ से टीचिंग टैब नहीं काम कर रहा तो मैंने प्लॉट्स और डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ से यूज़ किए थे. ठीक है, चलिए अब इसको सबमिट करते हैं. देखिए, ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है. दिस इज कॉल्ड कोरिलेशन मैट्रिक्स, जो आप अभी यहाँ देख रहे हैं, जिसको हमने यहाँ पर भी, अगर आप जाएंगे एनालिसिस में, कोरिलेशन में, तो कोरिलेशन मैट्रिक्स. ठीक है, सो सिंपल है. कोरिलेशन 2 वेरिएबल्स के बीच में होता है. ओके, एग्रीड. अब हमने यहाँ 4 वेरिएबल लिए हैं. अब कोरिलेशन टेबल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. ध्यान से देखिए, इसमें
0.383 कोरिलेशन है बिटवीन CS12 एंड CS10। क्या मतलब है इसका? कि पॉजिटिव तो सभी हैं, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा तेज CS10 और CS12 होते हैं। इसका मतलब अब देखिए, कोरिलेशन में आपको एक चीज और बताएंगे अभी थोड़ा। देखिए मैंने वही कहा, कोरिलेशन रिग्रेशन काफी बड़ी चीज हो जाती है, तो डोंट गेट फियर्ड। जब चेंज होता है CS10 में तो चेंज होता है 0.3 का CS12 में। ओके, 0.3 का मतलब अगर 1 यूनिट CS10 चेंज होगा तो 1 यूनिट आपका CS12 चेंज होगा। या फिर 1 यूनिट आपका CS12 चेंज होगा तो 0.3 यूनिट आपका CS10 चेंज होगा। अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस किया था पर्पस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, one is to describe, another is to find causation, association and prediction। अब यहां पे हम दो टर्म्स को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। causation and association। देखिए, हाइट और वेट का जो हमने बात करी थी, हाइट बढ़ रहा है तो वेट बढ़ रहा है, या फिर वेट बढ़ रहा है तो हाइट बढ़ रहा है। बादल आ रहे हैं तो बारिश हो रही है, कि बारिश आ रही है तो बादल हो रहा है। जब भी दो चीजें साथ में हों, को उनके कारण का ना पता हो आपस में, वी डू नॉट नो विच इज कॉजिंग व्हाट, then we just talk of association और correlation। तो association का मेजर है correlation और Pearson precisely in our context। we do not know x causes y, we don't know, और y causes x, we don't know। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता भाई। मुर्गी पहले आई कि अंडा? अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे तो फिर मुझे नहीं पता सोल्यूशन क्या निकलेगा, लेकिन हमको नहीं पता भाई। ठीक है, अगर आप दूर से देखें तो मुर्गी अंडा दोनों साथ साथ होते रहते हैं। दूर से आप देखें, आप पहले अंडा रखेंगे फिर मुर्गी होगी, लेकिन कुछ जगह मुर्गी होगी तो अंडा होगा। सो यू आर नॉट श्योर एक्स कॉजेज वाई और वाई कॉजेज एक्स, कौन किसका कारण आपको नहीं पता, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, दो साथ में पढ़ने बैठने शुरू हो गए, अब कौन किसको पढ़ा रहा है ये नहीं पता, लेकिन दोनों के मार्क्स अच्छे हो गए हैं। इसे कहते हैं कोरिलेशन और इसे कहते हैं एसोसिएशन। दे आर एसोसिएटेड, उनमें एक रिश्ता है। क्या रिश्ता है ये नहीं पता है। क्या का मतलब, जैसे पिताजी और पुत्र है तो हम ये कहते हैं पिता से पुत्र आया है। ठीक है, तो यहां पे हमें कारण पता है, पिता कारण है पुत्र का, लेकिन जब दो दोस्त पढ़ रहे होते हैं तो कौन किसको पढ़ा रहा है और दोनों के नंबर इंप्रूव हो रहे हैं तो आप नहीं जानते। देयरफॉर पहले हम बात करते हैं एसोसिएशन की, फिर हम बात करते हैं कॉजेशन की। एंड कॉजेशन मतलब कारण। इफ टू थिंग्स आर नॉट एसोसिएटेड दे कैन नॉट बी कॉजिंग ईच अदर। इसीलिए सबसे पहले कोरिलेशन कोएफिशिएंट चेक किया जाता है और उसके बाद कॉजेशन, जिसका मेजर है रिग्रेशन। चेक किया जाता है। सो पहले हम एसोसिएशन चेक करते हैं, जैसे कि हमारे इस केस में आप देखिएगा 0.1 0.2 आया है, हम इसके एसोसिएशन कॉजेशन में जाएंगे ही नहीं कि 11 11 को करता है, 11 1 को करता है कि 1 11 को करता है, हमें नहीं पता, हम नहीं पता करना चाहते। हाँ 0.3 है
So therefore there is something called degree of correlation. वैसे तो इसको लोग बहुत हाई बोलते हैं, 5-6 लेवल होते हैं, इसका कहते हैं हाई, मीडियम, लो। 0.3 से नीचे, 0.7 से 0.3 के बीच में, और 0.7 से ज़्यादा। आई लेट जस्ट रीराइट दिस। हाई कोफिशिएंट, हाईली कोरिलेटेड, मीडियमली कोरिलेटेड, लोली कोरिलेटेड। ओके, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम इसको स्टैटिस्टिकल टूल पे ले जाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।